ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کھیتوں کی ہریالی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور خلوص بھری زندگیوں کا راج تھا، وہاں ایک نیک سیرت خاتون زینب اپنے 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ زینب کے شوہر کا کچھ برس پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی پرورش اکیلے ہی کر رہی تھی۔ زینب کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام عالیہ تھا اور چھوٹی کا نام نیاب۔ عالیہ بظاہر نہایت فرمانبردار، باادب، نرم گفتار اور دینی مزاج کی لڑکی تھی۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر کہتا، کیا نیک بیٹی ہے، ماں کی آنکھوں کا نور۔ وہ گھر میں کام بھی کرتی، دوسروں سے نرم لہجے میں بات بھی کرتی اور اکثر قرآن پاک کی تلاوت کرتی دکھائی دیتی۔ عالیہ کے دل میں غرور، حسد اور چالاکی بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے فرشتہ بنی رہتی، لیکن پیٹھ پیچھے وہ اپنی بہن کی شکایتیں لگاتی، محلے والوں کے راز اگلتی اور جھوٹ بول کر فائدہ اٹھاتی۔ دوسری طرف نیاب چھوٹی بیٹی شرارتی اور کچھ حد تک لاپرواہ نظر آتی تھی۔ وہ کبھی کبھار گلی میں شور کرتی، کبھی ماں سے بحث کر بیٹھتی اور اکثر اپنی بات پر اڑ جاتی۔ لوگ کہتے، یہ لڑکی تو کسی کام کی نہیں، مگر نیاب کا دل نہایت صاف تھا۔ وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی تھی، کسی سے جھوٹ نہیں بولتی تھی اور دل سے ہر ایک کا بھلا چاہتی تھی۔ زینب اکثر الجھن میں رہتی۔ وہ عالیہ کے خوبصورت چہرے اور میٹھے الفاظ سے خوش بھی ہوتی، مگر اس کے دل میں نیاب کے لیے ایک خاص نرم گوشہ تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نیاب کے دل میں خلوص ہے، سچائی ہے اور اللہ کا ڈر ہے۔ دن کے وقت عالیہ جیسے نور کی مورت لگتی تھی، سر پر دوپٹہ، ہاتھ میں تسبیح، لبوں پر سبحان اللہ، مگر رات ہوتے ہی اس کا چہرہ بدل جاتا۔ ماں کی آنکھیں بند ہوتی تو وہ چھت پر جا کر موبائل میں مصروف ہو جاتی۔ واٹس ایپ پر لڑکوں سے باتیں، سیلفیاں اور جھوٹی دعاؤں کے اسٹیٹس، سب کچھ جاری تھا۔ نیاب کئی بار یہ سب دیکھ چکی تھی، مگر ہر بار خاموشی اختیار کر لیتی۔ وہ جانتی تھی اگر کچھ کہا تو ماں اسے ہی قصوروار ٹھہرائے گی۔ ایک رات نیاب نے ہمت کر کے ماں سے کہا، امی، آپا جو نظر آتی ہیں وہ حقیقت میں ویسی نہیں ہے۔ زینب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بس کر نیاب، عالیہ کی برائی کر کے تو اپنے گناہ چھپا رہی ہے، شرم آنی چاہیے۔ نیاب کا دل چکناچور ہو گیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سجدے میں گر کر روتی رہی۔ اے اللہ، تو گواہ ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی، حق کی پہچان ماں کو خود کرا دینا۔ نیاب باہر سے تیز، شرارتی اور لاپرواہ لگتی تھی، مگر اندر سے وہ سونے جیسی تھی۔ وہ چپ کے محلے کی ایک غریب بیوہ کو کھانا پہنچاتی، یتیم بچوں کے کپڑے سیتی اور مسجد کی صفائی میں مدد دیتی۔ کبھی کسی کو اپنی نیکی کا ذکر نہ کرتی۔ عالیہ کو اپنی نیکی کا ڈھونگ بنانے میں مہارت حاصل تھی۔ وہ محلے کی عورتوں کے سامنے ہمیشہ مسکرا کر بات کرتی، ان کے دکھ درد سنتی اور دینی باتوں کا حوالہ دے کر اپنے علم کا روگ بٹھاتی۔ ہر کوئی اسے فرشتہ صفت بیٹی کہتا۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی ماں کے پاؤں دبانے، قرآن کی تلاوت کرنے اور نیاب کی اصلاح کرنے کے عمل کو خوب نمایاں کرتی، مگر حقیقت یہ تھی کہ عالیہ دل کی اندھی، خود غرض اور مکاری میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ماں سے جھوٹ بول کر پیسے لیتی، نیاب پر الزام لگا کر خود بری الزمنہ ہو جاتی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ موبائل پر فحش باتیں کرتی۔ اس کا ظاہری پردہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ نیاب کبھی کبھار شکایت کرتی، امی، اب عالیہ آپا کو اتنی اونچے کیوں سمجھتی ہے، وہ آپ کے پیچھے۔ زینب اسے ٹوک دیتی، نیاب، زبان کو لگام دو، عالیہ تم سے بڑی ہے، نیک ہے اور تم بس جلتی ہو اس سے۔ نیاب خاموش ہو جاتی۔ اس کے دل میں کڑواہٹ ہوتی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماں کی نظر سے عالیہ کی اصلیت ابھی اوجھل ہے۔ ایک دن عالیہ نے اپنی چالاکی سے محلے کی ایک نیک دل خاتون حاجن فاطمہ سے رشتہ کروانے کی بات چلا دی۔ حاجن فاطمہ کو عالیہ بہت پسند تھی۔ وہ کہنے لگے، باجی زینب، اب کی عالیہ جیسی نیک بچی آج کل کہاں ملتی ہے، میں اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگتی ہوں۔ زینب خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی، بغیر نیاب کسی اور سے مشورہ کیے۔ نیاب نے صرف اتنا کہا، امی، اپنے عالیہ آپا کے بارے میں واقعی اچھی طرح سوچ لیا؟ زینب نے سختی سے جواب دیا، نیاب، تمہارے دل میں بغض ہے، اپنی بہن کی خوشی سے جلتی ہو۔ نیاب خاموش ہو گئی، لیکن اندر سے اس کا دل بہت دکھی تھا۔ ایک دن وہ گھر آئی تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ امی، میری اسکالرشپ ہو گئی ہے، میں شہر جا کر تعلیم حاصل کر سکتی ہوں۔ زینب نے بے دلی سے جواب دیا، تم جیسی لڑکی شہر جا کر کیا سیکھے گی؟ عالیہ فوراً بول پڑی، امی،
अब नायाब को भेजेंगी तो लोग क्या कहेंगे, और अगर कोई मसला हो गया तो आपकी बदनामी होगी। ज़ैनब ने सख्ती से कहा, फैसला हो चुका, तुम कहीं नहीं जा रही। नायाब ने टूटे दिल के साथ सजदा किया और सिर्फ इतना कहा, ए रब, लोग मुझे समझ नहीं सके तो मेरा मददगार बन जा। इसी रात नायाब ने एक बूढ़ी खातून के पांव दबाए जो बीमार थी। खातून की दुआओं में वो आंसू थे जो आसमान चीर सकते थे। आलिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई। हाजन फातिमा के बेटे बिलाल का ताल्लुक एक दीनदार और नेक खानदान से था। वो खुद भी हाफिज कुरान, नमाजी और नर्म मिजाज नौजवान था। ज़ैनब को यकीन था कि आलिया अब खुशियों की राह पर चल पड़ेगी। शादी के पहले ही दिन आलिया ने माँ से कहा, उम्मी, मैं अब यहाँ की नहीं रही। नायाब को समझा दें मेरे ससुराल की इज्जत का ख्याल रखे, और हाँ, मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी ज्यादा तारीफ करें ताकि मेरी शान बरकरार रहे। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बेटी तो खुद रोशनी है। रोशनी को किसी चिराग की जरूरत नहीं, लेकिन रोशनी का ये चमकता चेहरा अंदर से धुआं बन चुका था। शादी के कुछ दिन बाद बिलाल ने आलिया का मोबाइल चेक किया। बिलाल खामोश हो गया, मगर उसके दिल में शक और धचका ऐसा बैठ गया कि वो आलिया से दूर होने लगा। एक दिन बिलाल की माँ हाजन फातिमा ज़ैनब के घर आए। उनका चेहरा सख्त था। ज़ैनब बेहुन, तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हारी बेटी तो वो नहीं निकली जो तुम दिखाती थी। मेरे बेटे का दिल टूट चुका है। ज़ैनब के हाथ से चाय का कप छूट गया। क्या कह रही हो बहन? आलिया सिर्फ निकाब में नेकी दिखाती थी, दिल में झूठ, फरेब और गंदगी थी। हम इस रिश्ते को खत्म नहीं कर रहे, लेकिन दिल में जो इज्जत थी वो मर चुकी है। ज़ैनब सदमे से खामोश हो गई। इसी रात इसने नायाब को देखा जो खामोशी से वुजू करके तहज्जुद के लिए उठ रही थी। माँ का दिल भर आया। अब माँ नायाब की तरफ देखने लगी, मगर शर्मिंदगी से आंखें नहीं मिला पाती थी। एक दिन नायाब के स्कूल की प्रिंसिपल खुद घर आए। ज़ैनब बेहुन, हम नायाब को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इसे तुर्की में इस्लामी तालीम के लिए मुंतखब किया गया है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। मेरी नायाब जी, वो किरदार, इल्म और खिदमत में सबसे आगे है। ऐसी लड़की बहुत कम मिलती है। इसी वक्त आलिया ससुराल से आई, चेहरे पर गुस्सा और बिलाल की बेरुखी का शकवा। उम्मी, मुझे अपने बर्बाद कर दिया। अपने बिलाल को धोखे में रखकर मेरी शादी करवाई। अब वो मुझे मोहब्बत नहीं देता। मुझे शक है वो मुझे छोड़ देगा। ज़ैनब खामोश रही, सिर्फ अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई। ए रब, मेरी आंखों पर जो पर्दा था तूने उठा दिया। अब मुझे सच्चाई की पहचान अता कर दी। आलिया के घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे। बिलाल ने खामोशी से अलग कमरा ले लिया और आलिया से बात करना छोड़ दी। एक दिन इसने साफ कह दिया, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे साथ इज्जत से जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम्हारी असलियत ने मेरा एतबार खत्म कर दिया है। आलिया रो पड़ी, मैंने गलतियां की मगर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। बिलाल ने तल्ख लहजे में कहा, मगर तुमने जो असल खुद को छुपा कर शादी की वो झूठ नाकाबिल मुआफी है। इसी रात आलिया माँ के घर वापस आ गई। जेवरात, गुरूर, नाम सब कुछ पीछे रह गया था। चेहरे पर रिवायती नेकी का दुपट्टा तो था, मगर अंदर से वो टूट चुकी थी। ज़ैनब ने दरवाजा खोला। आलिया गिरती पड़ती अंदर आई और कहा, उम्मी, मुझे मुआफ कर दी, मैं बर्बाद हो गई। ज़ैनब ने इसे गिले तो लगा लिया, मगर दिल में एक ठंडी आह थी। दूसरी तरफ नायाब अपने सफर पर रवाना हो चुकी थी। तुर्की के शहर कोनिया में एक इस्लामी इदारे में दाखिला मिल गया। वो न सिर्फ बेहतरीन तालिबा बनी, बल्कि वहाँ के असातिज़ा ने इसकी सच्चाई, आजिज़ी और इल्म से मोहब्बत को दिल से सराहा। एक दिन इदारे के मोहतमम ने नायाब से कहा, बेटी, तुम्हारे अखलाक ने हमें मुतासिर किया। हम तुम्हें इदारे की नुमाइंदा बना रहे हैं। नायाब की आंखों में आंसू थे। आ अल्लाह, ये इज्जत तेरे करम का नतीजा है। मैं तो सिर्फ एक नादान बंदी हूँ। इदारे की वेबसाइट पर नायाब की तस्वीर छपी। नायाब ज़ैनब, ईमान, इल्म और किरदार की जिंदा मिसाल। रात का वक्त था। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। ज़ैनब खामोशी से नमाज पढ़ चुकी थी और अब जाए नमाज पर बैठी आंखें बंद किए आंसू बहा रही थी। इन आंखों ने जिंदगी भर आलिया को नूर समझ कर पाला था। इसकी हर बात को सच जाना, हर हरकत को नेकी का नाम दिया। मगर आज जब पर्दा हटा तो दिल पर ऐसा वार हुआ कि ज़ैनब का पूरा वजूद लरज़ गया। इसकी निगाह में नायाब का चेहरा अब आसमानी नूर की मानिंद था। वो चेहरा जिसे बरसों तक शरारत, गुस्ताखी और नाफरमानी का इल्ज़ाम दिया गया था।
ज़ैनब दिल में खुद से बातें कर रही थी, ए मेरे रब, मैंने हमेशा अपनी आंख से देखा, दिल से नहीं। मैंने आलिया के दुपट्टे को नेकी समझा, मगर नायाब की सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने अल्फाज पर यकीन किया, अमाल को ना जांचा। नायाब मुझसे नाराज़ नहीं हुई, कभी ज़ुबान नहीं चलाई, बस तेरे दर पर झुकी रही। और आज तूने मेरी अंधी आँखों से पर्दा हटा दिया। ज़ैनब ने अलमारी से नायाब के बचपन की तस्वीरें निकाली। एक तस्वीर में नायाब स्कूल यूनिफॉर्म में हंसती हुई नजर आ रही थी। ज़ैनब ने तस्वीर को सीने से लगा लिया। ये वही बच्ची थी जो रात को माँ के पाँव दबाने आती थी और मैं इसे धुतकार देती थी। इसकी हिचकियाँ बंध गईं। तब आलिया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में आई, चेहरा जर्द, आंखें पारिशक। उम्मी, ज़ैनब ने सर उठाया। हाँ बेटा उम्मी, मैं सब कुछ खो बैठी हूँ। बिलाल का दिल, ससुराल की इज्जत, अपनी पहचान, सब कुछ। ज़ैनब ने आंखें बंद करके कहा, आलिया तुम्हें तुम्हारी आंखें दुखा दी गई और मुझे भी मेरी। फिर ज़ैनब ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, ए अल्लाह, जिस बेटी को मैंने झूठा जाना तूने इसे सच्चा साबित किया। जिसे मैंने नाफरमान समझा वो तेरा वली निकला। मुझे मुआफ कर दे, मेरी आलिया को हिदायत दे और नायाब को सलामत रख। नायाब मेरी औलाद ही नहीं, मेरी बख्शिश का जरिया भी बने। इस दुआ के बाद ज़ैनब का दिल हल्का हो गया। रब, अब मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। मैंने सच को पहचान लिया और अपनी बेटी को पा लिया। यही मेरी तस्कीन है। नायाब तुर्की से वापस आई तो पूरा मोहल्ला इसकी सादगी, हाक और इल्म से मुतासिर हो चुका था। लोग इसे देखकर कहते, ये वही नायाब है जो बचपन में शरारती थी। माशाअल्लाह, अल्लाह ने कैसा नूर अता किया है। ज़ैनब खुशी से चमकती, ये मेरी नायाब है जो अंदर से रोशन और बाहर से पुरसुकून है। नायाब ने एक छोटा मदरसा कायम किया। वो रोज बच्चों को कुरान पढ़ाती, अखलाक सिखाती और दिलों को नर्म करती। इसने स्कूल के साथ साथ ख्वातीन के लिए एक मशावरती सेंटर भी खोला, जहां दिल शिकस्ता ख्वातीन आकर रहनुमाई लेती। ज़ैनब उसकी दरसगाह के पिछले कमरे में बैठती और रोज अश्कबार आंखों से अल्लाह का शुक्र अदा करती। इधर आलिया दिन ब दिन खामोश, नादिम और गमज़दा होती चली गई। एक रात वो ज़ैनब के पास आई और कहा, उम्मी, मैं नायाब की दरसगाह जाना चाहती हूँ, छप कर किसी को बताए बगैर। ज़ैनब ने हैरत से पूछा, क्यों बेटी? उम्मी, मैं वहाँ जाकर बैठना चाहती हूँ, शायद अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है बेटी, वो पलटने वालों से मोहब्बत करता है। आलिया निकाब ओढ़कर दरसगाह में पहुंची। नायाब ने इसे पहचान लिया मगर जाहिर ना होने दिया। दर्स के बाद आलिया खामोशी से बैठ गई और आहिस्ता से बोली, नायाब, ये मैं हूँ, आपकी वो बहन जो सच छुपाती रही और खुद को नेक जाहिर करती रही। नायाब ने नजरें झुकाए हुए कहा, आलिया आपी में अब से कभी नाराज नहीं हुई, बस अब का इंतजार करती रही कि कब अब हकीकत को देखेंगी। आलिया फूट फूट कर रोने लगी, मैं हार गई नायाब, मुझे कबूल कर लो। नायाब ने इसके आंसू पोंछे, अल्लाह जिसको मुआफ कर दे, मैं इसे कैसे रद्द करूं? आइए हम मिलकर वो सबक सिखाएं जिसे हम खुद सीख चुके हैं। आलिया अब नायाब के साथ दर्स देती थी और तालिबात को अपने किस्से से इबरत देती। मैंने झूठ का लिबादा ओढ़ा और बर्बाद हो गई, मगर जब मैंने सच का दामन थामा तो रब ने थाम लिया। ज़ैनब की दुआएं, नायाब की मुआफ़ी और आलिया की तौबा, तीनों ने मिलकर एक नई रोशनी पैदा की जो दूसरों को राह दिखाने लगी। कहानी का आखिरी पैगाम, जब तक इंसान खुद को सच्चा ना समझे वो रब के करीब नहीं जा सकता, और जब दिल झोंक जाए तो रब अर्श से झोंक कर थाम लेता है।